السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، یہ چھوٹی بچی جو ہے ایک بڑے مسئلے میں مبتلا ہے. خاص دعا کرو یہ بچی کے لیے کہ انشاءاللہ یہ بچی کو جلد سے جلد اللہ شفایاب کرے. یہ بچی کا پورا مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ اور یہ مسئلے کا حل انشاءاللہ ڈیٹیل میں بولوں گا. انشاءاللہ ڈیٹیل میں 10-15 منٹ کے علم پکڑو. اب سنبھالو بچی کو. 10-15 منٹ کے ریلز، 15-20 سیکنڈ کے ریلز میں یہ بچی کا پورا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا. مسئلہ کیوں آیا، یہ بچی کو مسئلہ کیوں آیا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن راستہ کون سا ہے حاصل کرنے کا، شفا حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ حکیم، ڈاکٹر، عالم، عامل کا کام نہیں، یہ پورے ہر انسان کا کام ہے کہ ذریعہ معلوم کرے، راستہ معلوم کرے. اور راستے میں درار پیدا کرنے کا کام شیطان کا ہے، راستہ آسان بنانے کا کام اللہ کا ہے. سمندر میں بھی اللہ راستہ بنا دیا ہے نہیں. تو انشاءاللہ طریقہ جان لیے نا، انشاءاللہ دنیا والے 100 بولنے دو، کامیاب ہو جائیں گے. اب ڈاکٹر بولے گا تو یہ بچی کو علاج نہیں ہوتا. اب یہ بچی کس کے حوالے؟ جب ڈاکٹر ہی بول دیا علاج نہیں ہوتا تو سمجھ جاؤ اللہ کے رسول ہزاروں سال پہلے بول دیے ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جسم بھر کو زخمہ ہو گئی بچی کو، اور بچی تڑپ رہی، بل بلا رہی. یہ بیماری ایک روحانی مسئلہ ہے. جب تک بچہ جو ہے بالغ نہیں ہو جاتا اس کا ہر گناہ معاف، اس کا ہر گناہ معاف. اور جب بالغ ہو جاتا تب اس کے ہر گناہ کو جو ہے لکھے جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور اللہ کی حکمت انشاءاللہ اور سچی توبہ اللہ کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ ایک راستہ ہے، سمجھو ایک شفا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ پورا طریقہ ابھی میں بتاؤں گا. اولاد نہیں ہو رہی سو والوں کو، مس کیریج ہو رہا سو والوں کو، اولاد ہو رہی تو بیمار اولاد ہو رہی، یا کم عمر کے بچے جن کے آرگنز ڈیڈ ہو گئے. ابھی بچی کا آرگن ڈیڈ ہوا. جسم کا بڑا آرگن کون سا ہے؟ چمڑا، سکن، جسم کا سب سے بڑا آرگن جو وہی ڈیڈ ہو گیا. اب ڈاکٹر لا علاج بول دیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مکمل آپ کو علاج بتاؤں گا انشاءاللہ. قدرتاً ادھر ادھر جھانکنے کا چھوڑ کے اپنے اوپر فوکس کرو. ہے نہیں، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے کتنے جورو، اس کے کتنے بچے، اس کے گھراں کتنے ہی، اس کے کاراں کتنے ہی، اس کے گرل فرینڈ کتنے ہی، اس کے بوائے فرینڈ کتنے ہی. یہ سب چھوڑ کے اپنے کام پہ فوکس کرو، دھیان دو. بیکار کے فضول میسیجز، بیکار کے ریلز مجھے بھیجیں گے تو ڈائریکٹ میں بلاک کروں گا، بیکاز دیٹ از نن آف مائی بزنس. صرف ایک ہی کام کے لیے آیا، ون آف مائی بزنس، خدمت. الحمدللہ، جس سے الحمدللہ لوگ شفایاب ہوتے. جب میری ماں کے جو ہے ماشاءاللہ بیٹے کو ڈاکٹر 80 لاکھ روپے دیو، چانس بھی نہیں، گارنٹی بھی نہیں، 4 دن کا بھروسہ دے کے بھیج دیے. الحمدللہ کامیاب ہو کے آ کے بیٹھی بات کرو. السلام علیکم. کیا ہو بولو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بیٹے کو لیور خراب ہوا، بولے موئن پاشا میرا بیٹا. کہاں والے ہیں میم؟ ورنگل والے. بولو. ورنگل والے ہمیں موئن پاشا کا لیور خراب ہوا، ٹرانسفر کرنا کو بولے یشودا میں. ہنم کنڈ میں بھی علاج کرے، وہاں بھی نہیں ہوا. یشودا کو لے گئے، اسٹار دواخانے کو لے گئے، وہاں بھی نہیں ہوا. آخر میں سرکاری دواخانے کو لے گئے، وہاں بھی نہیں ہوا. یشودا میں 80 لاکھ ہوئے تو تمہارا لیور ٹرانسفر ہوتا بول کے بولے. تو سب لوگ روتے ہوئے، نمازاں پڑھتے ہوئے، دعائیں کر لیتے ہوئے، یاسینہ پڑھ لیتے ہوئے میرے بیٹے کے اوپر رو لیتے ہوئے. پیٹ اتنا پھول گیا، 2 روز کے یہ خود پانی نکالنا 2 لیٹر 3 لیٹر. امی رونے لگیا بچہ بھی.
अल्लाह दुआएं पढ़ते हुए आयतल कुर्सी पढ़ते हुए मैं उम्रा को गई थी, वहाँ का पानी निकाले को बच्चे को पिला लेते हुए आखिर में आप ये इनका नाम क्या हकीम अताउल्ला का एड्रेस मालूम है बच्चे को मालूम है, तो मैं वही पीता हूँ मैं बोल के फिर दवाखाने में से डीचा हो वहाँ से आके यहाँ को आके पूछ ले को पत्ता कैसा कुछ पता ना भूमि आमला भी ठीकरी की भाजी ये 2 दाल को उबाल को उसका रस पिलाई बच्चे को, जरा 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 कम होते गया। अल्लाह के तौफीक से मेरे को हैदराबाद को आता हुआ बोले तो मैं मेरी भाऊ मेरा बेटा मेरी बेटी सब मिलकर फिर के यहाँ को आई, 2 बेटे मैं मेरी भाऊ। बच्चा कैसा है अब अच्छा है मेरा बच्चा, ये लीवर अच्छा है, इरखान चले गया, पानी चले गया, अच्छा खुशी से है मेरा बच्चा। जब मेरे को सांस निकली है मेरे बच्चे के तरफ से मरती मेरे को हर रोज रो लेते रहती थी, खाना नहीं पानी नहीं रोना। तो मेरी दूसरी भाव क्या बोलते कि तुम रोते रोते खाना नहीं खा रहे मोसा ना हो रहा है बद को। जेठानी को बोले बाजी तुम्हें सास को जरा नको बोलो हिम्मत दो नहीं उठते है बोल को। हम मेरी मंजली भाव बोले नहीं अम्मी कुछ भी नहीं होता कहते, बोलते गई मेरी बड़ी भाव रोते गई। मेरे कैसी हिम्मत आती, मेरा बड़ा बच्चा मेरा बड़ा बेटा मेरा बाप भी नहीं है बच्चे को बोल के मैं रोती हुए दुआ पढ़ लेती हुए दुआ कर लेती हुए हर नमाज में मेरे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ लेना यासीन पढ़ लेना मेरे बच्चे को दुआ कर लेना। ऐसा मेरा बच्चा अच्छा हुआ अल्लाह के फजल से। अच्छा इतना खाना खाते हैं अब अच्छी तरह से आते हैं 8 उसको 4 उसको में से आपको मिल को जाते हैं बच्चा अलग है क्या बच्चा अलग ही चाहिए तो माँ मैं ना माँ हूँ ना मैं बाप भी नहीं है ना। मेरे को 3 बेटे ये 1 बेटी अल्लाह सब मेरे को ये बच्चा कब अलग हुआ वो शादी होने के बाद 1.5 साल के बाद ही था चले गए जान दे बोलूं खर्च बैठे क्या करते चलो अच्छा जी तो बस से मेरे को उतनी खुशी। देखो एक माँ की मोहब्बत, बच्चा शादियों को 1 साल में अलग हुआ 2000 की ऐसी की पेंशन आती है ये रोग है तो इसमें लगा लेती हूँ बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। अब 2000 की भी जरूरत नहीं है आपको इंशाल्लाह, अच्छा पत्तों में शिफा हो जाते, तरीका समझ जाओ। बराबर आऊंगी मेरा शिफा होने के बाद आऊंगी क्या कुछ कर लेना का है मेरे दिल से मैं नहीं बोलती माँ की जैसी मैं भी। बस आपके दुआएं जो है ना मेरे दुश्मनों को खत्म करने के लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह है हमारा ईमान सच है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान सच है अल्लाह बड़ा है। अब देखो मेरी माँ अभी मुझे बोलने दो ठीक है ओके। ट्रांसप्लांट बोलने नहीं आ रहा यानी एक बीमारी का नाम बताने नहीं आ रहा मेरा नाम बोल नहीं सक रहे, फिर भी ये उनके अल्फाज नहीं ये उनके दिल की तड़प है जो उनका बच्चा गुजरा सो है समझ रहे हो वो जो तकलीफ से इनका बच्चा गुजरा। अब देखो शादी हो 1.5 साल हुआ बच्चा अलग है लेकिन माँ के दिल की तड़प शादी हो 15-20 साल मार शादी हो 1.5 साल को चले गए रेंदो लेकिन तड़प देखो बच्चे के लिए, मोहब्बत देखो, चाहत देखो, यही अल्लाह पसंद करता है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बच्चा शिफायाब है कम्प्लीटली। सिर्फ भूमि आमला का पत्ता अल्हम्दुलिल्लाह टिकरी की भाजी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक पत्ते में अल्लाह ताला ने शिफा रखा, अल्लाह हुक्म दिए तो पत्ता असर करेगा इंशाल्लाह, नहीं तो पत्ता भी आपके लिए जहर बन जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ सबसे पहले सूरे बकरा सुनो, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करो जो है अब नहाने के लिए, शीशम के पत्तों का इस्तेमाल। इसीलिए मैं आपको बार बार जो है बताता हूँ। अब एक को पूछा पत्ता मिला क्या माँ का, नहीं मिला। पता मिला क्या माँ, हो मिला कहाँ का कहते जलपल्ली का कहते, ये नहीं जलपल्ली का नको आपको पता वहां का मिलना। देखो अल्लाह का नाम ले लेके लूट रहा बोल के लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मेरा कुछ नहीं उखाड़ ले सकते अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह मेरे साथ है। ये बात का खास ख्याल रखो, सिर्फ पत्तों से आप शिफायाब हो सकते, सिर्फ इल्म के जरिए 4 पत्ते, जब तक जिंदा ही तब तक 4 पत्ते तो मालूमात हासिल कर लो, 4 पत्ते तो जान लो। ये इल्म बांटने वाले भी प्रॉब्लम में आ जा रहे लोगों को, डॉक्टरों को प्रॉब्लम, हकीमों को प्रॉब्लम, यानी नाहक चोरी करने वालों को प्रॉब्लम। जिंदगी में 4 पत्ते जान लो। शीशम का पत्ता कैंसर के मरीजों के लिए, भूमि आमला का पत्ता लीवर के मरीज के लिए, ठिकरी की भाजी किडनी के मरीज के लिए,
घोकरू का कांटा, पीपल का पत्ता किडनी के मरीज के लिए, अर्जुन की छाल हार्ट के मरीज के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये 4 पत्ते अगर आप जिंदगी में मालूमात कर लिए ना, इंशाल्लाह हकीमा, नीम हकीमा, डॉक्टर, इन लोगों से बच के आप खुद कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। कामयाब लोग हैं ये जो अमल करके शिफायाब हुए। हकीमों का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, उनके अल्फाजों से होता, जो अल्फाज बंदे को अल्लाह से जोड़े इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब एक छोटी बच्ची को मैं आप बताया, ठीक है, ये रूहानी मसले समझने की आप थोड़ी ये कर लो। जिनको भी जो है लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये ऑर्गन्स फेल हुए तो समझो ये रूहानी मसला है। ये चुप चुप फेल नहीं होते। कुछ बड़ी एक ताकत अल्लाह से बड़ी तो हरगिज नहीं हो सकती। एक बुरी ताकत, एक बुरे अमल जो सेहत को बिगाड़ देते, तब जाके आपका एक ऑर्गन डैमेज हुआ तो आपका सोना, उठना, खाना, पीना, आपका सुकून सब गारत हो जाता। उसके बाद आपको फैसले करने में मुश्किल, क्या करना। आप मेरे पास इलाज कराने कम, मशवरा करने ज्यादा आते। क्या करेंगे हकीम साहब, डॉक्टर काट तुम बोल रहा, क्या करेंगे हकीम साहब, IVF 2 बार कराए फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, रिपोर्टा भी नॉर्मल फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, मिसकैरेज हो जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है नहीं। क्या करेंगे हकीम साहब, जो है जबान काट डाल तुम बोल रही, ऊपर से गारंटी भी नहीं दे रहे। क्या करेंगे हकीम साहब, हाथ काट दे तुम बोल रही, पैर काट दे तुम बोल रही, कीमो कराना बोल रही, डायलिसिस कराना बोल रही। बाहर तक आते, अंदर तक मुश्किल करते आने के वास्ते। ये 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो मैं डेली आप लोगों के लिए चीखा मार मार के बोल रहा हूँ, अमल करो, अमल करो। खाली दवाएं दे भेजता था मैं, 6 साल से आपकी खिदमत में लगा हूं। दवाएं देने पे कम, मेरा फोकस अल्फाजों पे ज्यादा है, जो इंशाल्लाह आपको जोड़ दे, जो आपको पहचान करा दे इन पत्तों की। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह अब ये छोटे बच्चे को जब मसला है तो अमल करना, माँ बाप अमल करना। देखो इलाज 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है। थोड़ा बच्चे को बिठा ले को बाहर बैठो माँ। इलाज 3 चीजों पे डिपेंड है। एक दवा, पहला अमल, दूसरा दवा, फिर शिफा। माइनर के केस में, रूहानी के मसले के तौर पे 2 मिनट बाहर लेकर जो बोलो, बिठा हुआ कोई एक बैठो मां, कोई एक बैठो सुनने के लिए। मैं बोलिया रूहानी मसले आपको जो है आप खाली बीमारी को पहचानना सीख गए तो बहुत आसान है। देखो आजकल बीमारी को पहचानना बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ये डॉक्टरांस पहचानना, हकीमुज पहचानना, आमिल साबुज पहचानना, हजरत पहचानना नहीं। इंसान है तो पहचानने की कोशिश करो, मदद अल्लाह करेंगे आपको इंशाअल्लाह। पूरे लूटने बैठे सो यहाँ पे, कौन भी बताने नहीं बैठे। बताने वालों को मुआ रोकने की कोशिश करते, अल्लाह को नापसंद चीज है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पे मैं बता रहा हूं, किसी को दवा लेने के लिए नहीं बुला रहा हूं, किसी को दवा के ऊपर प्रेशर नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं। अल्लाह जबान दिया, बोल रहा हूं, अमल करना नहीं करना तुम्हारी बारी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इलाज 3 चीजों पे डिपेंड है। एक दवा, दूसरा अमल, तीसरा शिफा। माइनर के केस में जब के ऑर्गन फेल हुआ, रूहानी मसले अगर आप पहचान लिए तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो गए। शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन का इलाज करने आ रहा हूं मैं, कड़पा को बोल रही, मैं शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन का इलाज करने नहीं आ रहा हूं, ये आप खुद कर ले सकते, नुस्खे बता दिया सो। जब रूहानी मसले बहुत बड़े हैं, जैसा कि जेनेटिक एक बीमारी, कैंसर की बीमारी घर में सबको, किडनी की बीमारी घर में सबको, लिवर का मसला घर में सबको, ये जेनेटिक। दूसरा और पेपर लो जी, दूसरा माइनर जो छोटे बच्चे को ऑर्गन फेल हो जाना, ये हैंडीकैप या फिर ब्लड में इंफेक्शन होना, ऑर्गन फेल हो जाना,
ब्लड में इन्फेक्शन इन द सेंस हेपेटाइटिस बी, HIV, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, ऐसे टाइप की बीमारी जो खून में आ जाता है नहीं, और जो है दवायां का काम नहीं करना, दवायां साइड इफेक्ट देना है नहीं, तो ये चीजें सारे रूहानी मसलों की अलामत है। जब आप रूहानी मसलों को समझ गए तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, डायलिसिस के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अब उनको सिखाए डायलिसिस करो, डायलिसिस करते, क्रिएटिनिन देखते, बढ़ते ही डायलिसिस, दूसरा रास्ता नहीं है आपको। यानी तो अमल कर, यहाँ अल्लाह बोल रहा पत्ते में शिफा है, यहाँ डॉक्टर बोल रहा कैंची में शिफा है। समझदार को इशारा काफी है नहीं, तो पत्ता लेना है या कैंची लेना है। इन्हें बोल रहा कैंची में डाउट है, गारंटी नहीं है। अल्लाह बोल रहा है गारंटी के साथ, बस बदले में यकीन। इन्हें बोल रहा कैंची के साथ डाउट है, गारंटी। इन्हें डाउट कुछ जाता है नहीं। आजकल हकीमा उससे बदनाम हो रही सो, और हकीमों को बदनाम इसलिए कर रही, अमल तो नहीं करते है नहीं, लूट ले रहा कर। मैं कड़पा को आपको शुगर, बीपी, थायराइड की दवा देने नहीं, आपको सिर्फ बताने आ रहा हूं, अमल करके शिफा हो जाओ इंशाल्लाह। आप गरीब हैं, बीमार हैं, आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मेरे डॉक्टरों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलता हूं, आप मरीज की बीमारी को पहचानो, उनकी गरीबी और अमीरी को मत पहचानो, क्योंकि हमारा रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। रिज़्क़ उसके हाथ में है, जिंदगी उसके हाथ में है, मौत उसके हाथ में है, इज्जत उसके हाथ में है नहीं कि दुनिया इज्जत देंदे नहीं देंदे। हमना एक्सपेक्टेशन अल्लाह से है, ये दुनिया गई भाड़ में, जरूरत नहीं। अल्लाह खुद बोल रहा दुनिया में आने वाला ये धोखे की जगह है, मोमिन के लिए ये खैद खाना है। जब से आपकी खिदमत कर रहा हूं, यकीन मानो खैदिज बन के हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर खाली मरीजों से ही मुलाकात, एक मरीज से, दूसरा मेरे घर से, और किसी से वास्ता नहीं है, और तीसरा मेरी टीम से जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक काम में अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे कितने भी बड़े मोदी भी फोन कर रहे थे, हम बिजी का तुम, आई डोंट नो, मेरा नंबर ही नहीं देता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप लोगों से गुजारिश है इंशाल्लाह अमल करके शिफा हो जाओ। तो जो भी अभी ये अमल क्या करना है, जो बच्ची तकलीफ में है इंशाल्लाह, जो बच्ची तकलीफ में है, इसके लिए अमल क्या करना, 1 घंटा सूरे बकरा घर पे बैठ के फोन पे लगा के सुनना। दूसरा, बच्ची दूध पी रही क्या, तो वो दूध में शिफा है। अगरचे दवाई में या इलाज में जो है दूध परहेज है, दूध जहर है, तो माँ का दूध बच्चे के लिए दवा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? माँ का दूध बच्चे के लिए शिफा है। ये शिफा कैसा होता, जब दवा, ये दवाया नहीं, ये फूल पत्ते ग़िज़ा है, समझ रही हैं? ये जब अंदर जाएंगे ना तो दूध के जरिए से शिफा बन के निकलेंगे बाहर इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो बच्ची का चमड़ा पूरा डैमेज होगा तो इसके लिए शिफा, एक बेर के पत्ते, दूसरा गिलोई के पत्ते, 11 गिलोई के पत्ते, 11 बेर के पत्ते इंशाल्लाह। 1 जग पानी में अच्छा पका ले को, आधा जग कर ले को, थोड़ा थोड़ा पिलाओ उनको इंशाल्लाह। ये अंदर जाके दूध के जरिए शिफा बन के निकल दे इंशाल्लाह। फिर देखो इंशाल्लाह, जो डॉक्टर बोले ना इलाज नहीं हो रहा बोल के, आप खुद इंशाल्लाह, एक तो ईमान ताजा, आपको कोई दवा नहीं है, ये शिफा है इंशाल्लाह। आपका यकीन मजबूत है, आपके पास सही तालीम है, सही इल्म है, अल्लाह की मदद है, काफी है आपको। डॉक्टर की बात साइड में, पहले रसूल की बात। अल्लाह के रसूल फरमा दिए कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा। अब क्या करो, 1 चुटकी कलौंजी, नबी की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए 1 चुटकी कलौंजी, 7 बेरी के पत्ते, 1 जग पानी में अच्छा पका लो, मीडियम होने के बाद नहाने के पानी में थोड़ा डाल के नहाओ, फिर लास्ट में जो बच जाता पानी उससे जो है सर पे राइट साइड लेफ्ट साइड डालना, खाली बकेट में, वो जो आपको बचता ना वो कोई पौधे को डाल देना इंशाल्लाह। एक अल्लाह की नेमत में दाखत शिफा के लिए, एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
کیونکہ اللہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گا، اور امت کے لیے بہت قربانیاں دی تھی اللہ کے رسول. ماں کے گود سے خبر کے گود تک پورے طریقے بتا دیے. ہم لوگ لاپرواہی کر کے جو ہے یہاں تک پہنچ گئے، لیکن علم نہیں ہے. علم کی کمی سے یہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. جب علم مل جائیں گا نا انشاءاللہ کامیاب انسان رہیں گے آپ انشاءاللہ، ہے نہیں. اور ایک انٹرنل بتا دیا، اور ایک ایکسٹرنل بتا دیا، اور ایک سورہ بقرہ کا عمل. یہ 3 عمل کر لیا انشاءاللہ آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہیں دواؤں کی ضرورت نہیں رہیں گی، ویسا شفا ہویں گی بچی کو انشاءاللہ. ہاسپٹل میں لاکھوں کے روپے خرچ کرے، حکیمہ کو ہزاروں کے پیسے کھلا دیے. اللہ خالی مفت میں پتے دے رہا، یہ پتوں میں آپ انشاءاللہ شفا یاب ہو سکتے. اب دوسرا، اولاد نہیں ہو رہی. اولاد نہیں ہو رہی تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے انسان کو مرد کے ریڑھ کی ہڈی سے، کمر کے، اور عورت کے چھاتی کی ہڈی سے نکلنے والے پانی سے پیدا کیا. اب یہ پانی وہاں سے نہیں نکلتا جب جو ہے کچھ برا اعمال یا پھر بد نظری ہو کے رہتی. کون تو بھی کوس کچھ رہتا رہیں گے تجھے اولاد نہیں ہونا، بول کو کسے معلوم ہے نہیں. یہ بددعا کبھی خالی نہیں جاتی. کسی کی یہ برے عمل جو کرتے انہوں اللہ کے پکڑ سے نہیں بچتے. بد نظری بھی اثر کرتی، یہ چیزیں اثر کرتے. اللہ کے رسول خود فرمائے میری امت میں سے زیادہ لوگ بد نظری سے خبر کو چلے جاتے بول کے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تھوڑا فیئر اینڈ لولی لگا لیا، کتنا گورا دکھ رہا، دیکھ نظر لگ گئی. دبلا ہو گیا انہیں بہت، نظر لگ گئی. موٹا ہو گیا انہیں، نظر لگ گئی. موٹا ہوا تو ہتی، دبلا رہا تو 1.5 فصلی. بوڑی مزدہ لے جا کہتے کتے کا منہ بند کر لے جا. یہ انسان کا منہ بند کرنے ہوتا نہیں. جنہ کوئی سا پڑ کو پھوکے تو بھاگ جاتی، یہ دلندرہ کو خکار کو تھوکے تو بھی نہیں جاتا. ایسا پوچھ لیتی اور تھوکو کہتی. خکار کو تھوکو منہ پچ بول کو کیوں پوچھ لیتی اور تھوکو کہتی. ایسے غلیظ نسلیں ہیں ان لوگاں، 1-2 کو پیدا ہو کر نہیں رہتے ہیں. ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ بدنام. یعنی ایسے غلیظ نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب رکھا ہے، جو اللہ کی بات کو جھٹلاتی اور اللہ کے جو بھی قرآن کی بات اور حدیث کی بات آتی اسے انکار کرتے. ایسے ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ ہم نے انسان کو مرد کی ریڑھ کی ہڈی اور عورت کے چھاتی کی ہڈی نکلنے والے پانی سے پیدا کیا. اب وہ پانی وہاں سے نہیں نکلتا جب ان کو بد نظری ہو کر رہتی. اب قرآن میں کیا ہے علاج؟ والتین والزیتون وطور سینین. اللہ جو چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا بیکار سے نہیں ذکر کیا، اس میں کچھ فائدہ رکھ دیا، اس میں کچھ کامیابی رکھ دیا اس کے لیے جو سنتا اور عمل کرتا. 50 گرام زیتون، 50 گرام کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل انشاءاللہ یہ لے لو. مرد ریڑھ کی ہڈی اور پیشانی انشاءاللہ لگانا ڈیلی عورت کو سونے سے پہلے. عورت پیشانی اور چھاتی کو انشاءاللہ. کون سا تیل؟ زیتون. اور سن رہی نا؟ سو گئے کیا؟ نہیں نا؟ نیند ہے تو بولو انشاءاللہ. میں بھی ذرا سو اوکے ٹھیک ہے، بیکاز میرا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے عمل کرنا. دوا لیو نکو لیو سیکنڈری انشاءاللہ. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ کیونکہ آپ بڑی محبتوں سے آتے میرے پاس، کیونکہ شیطانہ روکتی جانا کو کہ وہاں جا رہی علاج صحیح ہوتا ہے کہ نہیں، کہ کیا ہے کہ ڈاؤٹ کے اوپر. ڈاؤٹ کا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ڈاؤٹ کا علاج نہیں ہے. یقین سب سے طاقتور چیز ہے. یقین کرنے والوں کو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندہ رہے تو کئی کو گھور گھور کو جیتی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اوکے. تو سورہ بقرہ 1 گھنٹہ فون پہ لگا کے سننا. دوسرا، بیر کے پتوں کا استعمال بولیانا میں کیسا نہانا، سمجھ رہے نا. تیسرا، کلونجی اور زیتون کا تیل انشاءاللہ. اور 1-2 نسخے بول دیتا ہوں. عورت کے لیے نسخہ کیا ہے؟ الو ویرا. جب ماہواری ہوتی اس دن
नोट कर लो इंशाल्लाह, ये चीजों में बहुत शिफा है मां अल्हम्दुलिल्लाह। लोग दवाओं से ज्यादा नुस्खों में शिफा हो के अल्हम्दुलिल्लाह दुआ देते, जो चीजें मैं बोलता हूँ, और अमल करके शिफा होते। अमल करने से ईमान और ताजा होता। माना है हम गुनहगार हैं, हम लोग गुनाह किए हुए। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की नाफरमानी करे, शैतान भी अल्लाह की नाफरमानी करा, लेकिन शैतान तकब्बुर में आके ऐसा ऐंठा अना किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम तौबा की दुआ सीखे और तौबा कर लिए। इसीलिए अल्लाह अशरफुल मखलूकात, इतनी मखलूक पैदा करा, लेकिन पसंद इंसान को ज्यादा करता। क्यों? इंसान के अंदर अपने गुनाह करके दिल से तौबा करने की खासियत को अल्लाह बहुत पसंद करता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये अल्लाह और बंदे का मामला है। जब अल्लाह से आप रिश्ता रखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बोलती जमीन से लेके आसमान तक के गुनाह लेकर आ, मैं चाहा तो माफ करूंगा, बशर्त उसमें शिर्क नहीं रहना। तागे तावीजा नारल नींबुआ कड़े, किसी और के सामने सिर झुकाना, किसी और को सजदा करना, किसी और से मांगना, अल्लाह को ये सख्त नाराज करने वाली अमल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शिर्क से बचते हुए इंशाअल्लाह ये चीजों पे अमल करो इंशाअल्लाह। तो 3 दिन महावरी, सुबह में नहार पेट, औरत सुन लो गौर से, सुबह में नहार पेट, एक केला और एक जो है 4 इंच से 6 इंच एलोवेरा साइड में काट लो इंशाअल्लाह। उसके बाद पूरी चटनी बना लो, वो केले के साथ मिला के खा लो सुबह नहार पेट इंशाअल्लाह। 3 दिन करना, एलोवेरा और माउस 3 दिन करना। सुबह में एक, शाम में एक, नारियल का पानी एक नारियल का पानी, सुबह में एक, शाम में एक। और जो है कुछ हेवी लिफ्ट नहीं करना, और ट्रैवलिंग नहीं करना, और गर्म चीजें नहीं खाना, ठंडी की चीजें खाना, जैसा कि जो है दाल खाना, नमक इस्तेमाल कर सकते, लाल मिर्ची इस्तेमाल कर सकते, हरी मिर्ची नहीं लेना, हरी मिर्ची गर्म होती, लाल मिर्ची ठंडी होती। प्याज इस्तेमाल कर सकते, नारंगी इस्तेमाल कर सकते, खीरा इस्तेमाल कर सकते, दूध इस्तेमाल कर सकते, छाछ इस्तेमाल कर सकते। दही नहीं लेना, दही गर्म होता, दही नहीं लेना। छाछ इस्तेमाल कर सकते, और रागी इस्तेमाल कर सकते। गेहूं नहीं लेना, गेहूं गर्म होता, रागी ठंडा। रागी ले सकते, रागी का हिट, रागी का जो है मैदा का कुछ, ये रागी का जो है हलवा, ऐसा कुछ भी गेदा बनाने का। ये आपका खान पान, गोश्त नहीं खाना, गोश्त से परहेज करना, गरम चीज, काली मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें परहेज करना। अब मैं जितना बोला सिर्फ इतना खाना, इंशाअल्लाह 1 महीने में अमल रुक जाता इंशाअल्लाह। इतना ही काफी है। औलाद नहीं हो रही, सोचते कितने ताने भी देते, देखो है नहीं, उनको खाली मुंह हो ना बस बोलने के वास्ते, मशवरा देने सौजे नहीं आती, साथ देने कोई भी नहीं आते है नहीं, मुंह खोलने को आ जाते ना बोलते, और इसके हाथ से काम भी नहीं कराना कहते। कैसे नालायक खां का दौर है, देखो इसके हाथ में नहीं देना अच्छा काम, इसके हाथ में बेऔलाद है नहीं। तो ये लोग अनपढ़ा हैं, जाहिला हैं, जो है सही और गलत की पहचान नहीं रहती इनको। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना। अल्लाह और उनका है, वो उनको अल्लाह क्या है ये करता, आप कौन होते बोलने वाले? समझ रही हैं आप मेरी बात? तो एलोवेरा का कोर्स कर लिए, उसके बाद गर्म चीजों से परहेज कर लिए, ये चीजें कंटिन्यू करना इंशाल्लाह। अब भाई मर्द की बारी। अब मर्द के अंदर कमजोरी है, इरेक्शन का इशू है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, और जो है एरेक्टल डिस्फंक्शन है, स्पर्म काउंट कम है, मोर्टेलिटी कम है। 2 चीजें इंशाल्लाह बहुत फायदा देंगे इंशाल्लाह। एक हरड़, दूसरा जो है सेगे की भाजी रहती है, देखो उसके बीज, सेगे की फली, लंबी फली रहती है, देखो क्या बोलते हैं उसको, सोजे की फली, मूंगे की फली, लंबी फली आती है, ड्रम स्टिक बोलते, उसका बीज, और एक हरड़ बोल के आप बोले तो दवा सच में देते। ये हरड़ का पाउडर और ये बीन्स का पाउडर, ड्रम स्टिक सीड्स बोल के आप ऑनलाइन भी सर्च कर ले सकते। 2 भी पाउडर 50-50 ग्राम ले लो इंशाल्लाह। ये आपके नसों में ताकत देते, आपको इरेक्शन के लिए, प्रीमेच्योर के लिए, और जो है आपको काउंटिंग के लिए, और जो है मोर्टेलिटी के लिए, सारी चीजों में इंशाल्लाह फायदेमंद है, कुदरती चीज है इंशाल्लाह। ये पाउडर 50-50 ग्राम ले लो इंशाल्लाह। 1 चमचा गाय का दूध सुबह में कच्चा, 1 गिलास दूध
एक गिलास 1 चमचा पाउडर इंशाल्लाह मिला के पी लो। देखो इंशाल्लाह इससे बहुत जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और एक नुस्खा नोट डाउन कर लो, 1 गिलास दूध, उसमें 1 चमचा दही और जो है 1 यानी तो 2 केले इंशाल्लाह। ये नहार पेट, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद ये मौज, केला, दूध और घी इंशाल्लाह। ये 2 नुस्खे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतरीन असर करेंगे इंशाल्लाह। और दिन में एक बार कभी भी हो सके तो कच्ची प्याज, सफेद उजली एक कच्ची प्याज पूरी चबा के खाओ इंशाल्लाह। इससे भी जो है ताकत आती है आपको बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह। आपके कीड़ों की क्वांटिटी क्वालिटी सब बढ़ जाती है इंशाल्लाह। इतना अमल कर लियो फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। आपको दवाओं की भी जरूरत नहीं, हकीमों के पास जाने की भी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। कहीं भी जाओ, जब ये भी आपको असर नहीं कर रहा, मेरे पास आ रही, बहुत मुश्किल से एड्रेस निकाल कर आ रही, अमल करो इंशाल्लाह। अमल करते हुए फॉलो करो इंशाल्लाह। और कुछ जड़ी बूटियां जो जंगलों में जाके आपके आंखों के सामने जितने हैं और जितना पंसारी पे मिलता, बता दे रहा हूँ, जो चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए मुश्किल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता के आपको सिखा के देते हैं। यहाँ पे चीजें सीखने के मकसद से हो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 11 तारीख तक जो है हैदराबाद में जलपल्ली, अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी इंशाल्लाह। और जो है 14, 15, 16 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपल्ला, फैजुल लेआउट। देखिए ये भी एक रूहानी मसला ही है किडनी का। अभी जो भी मैं बोल रहा वो सुन के अमल करना। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे थे, जब से डायलिसिस शुरू हुआ चेहरे का पूरा रंग बदल गया उनका। डायलिसिस चालू हुआ ना, उससे पहले था क्या ये पूरे डायलिसिस चालू हुए से 2 साल से पूरा ब्लैक होना शुरू हो गया, पूरा ब्लैक होना शुरू हो गया। कहाँ से हैं आप? यहाँ हैदराबाद से पटिनचोर। आप आ जाओ, एक 2 अल्फाज आप भी बोल। हाँ चलो, अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं करीमनगर से हूँ। जी। ये क्या मसला था मैम? ससुरे ना? हाँ ससुरे में कैंसर का प्रॉब्लम था, जबान का कैंसर था। फर्स्ट विजिट में खाना खाने भी नहीं आ रहा था। दवा लग जाने के बाद 2-3 दिन के बाद खाना खाना आसान हुआ। ऐसे 5th विजिट है ये। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है, क्यूर हो गया पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्यूर हो गया। और वो औलाद का जो बता रहे थे, वो हमारे साले साहब को 8-9 साल हो गया था जी। एक बार आके दवा ले गया, एक ही बार ले गया, फिर नहीं आया। तो उसके बाद उनको 2-3 महीने में प्रेग्नेंट हुए। अच्छा, एक ही बार की दवा में 2-3 महीने में कंसीव हो गए? हाँ 2-3 महीने लगे एकदम दवा एकदम लेकर गए थे, ले गए थे। ओके माशाल्लाह। अब क्या बेटी है बेटा है उनको? बेटा है जी। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है जी। उनके लिए भी मैं एक नुस्खा बोलता हूँ, नोट डाउन कर लो इंशाल्लाह। मुंह के कैंसर या मुंह के छाले, ये मुंह के छाले, ये मुंह का कैंसर, ये कैंसर अब बोले सो पहले कैंसर नहीं था, समझ में आ रहा? अब ऐसो ये बीमारी के नामा कुछ तो भी करना ना भाई, पेट के वास्ते नहीं, पेट के वास्ते, घर के वास्ते, बंगले के वास्ते, सारे चीजों के लिए करना पड़ता ना, तो इसीलिए नाम देना पड़ता कैंसर बिल्कुल, यानी तो इस वजह से उसका इलाज यूजुअली देखो, मैं बोला कैंसर के सेल्स ये पैदा नहीं हुए, इसको भेजा गया है। डायरेक्ट आगे को तो आप केस कर डालती ना उनके ऊपर, डिफेमेशन केस, यानी कोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह, इस वजह से नहीं तो जीना हराम कर देते थे। यानी अल्लाह जब तक साथ है इंशाल्लाह, कोर्ट के ऊपर भी ये नहीं, जब तक अल्लाह साथ है काफी है, अल्लाह काफी है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मुंह के छाले, पेट में छाले, मुंह के अंदर छाला हुआ तो मुंह का कैंसर करके बोलते हैं। अगर लिवर के ऊपर छाला आया तो लिवर कैंसर, कार्सिनोमा कहते हैं। अगर जो है अंखी के अंदर आ गया छाला तो आई कार्सिनोमा कहते हैं। लंग्स में आएगा तो लंग्स का बोलते हैं, लंग्स कार्सिनोमा कहते हैं, यानी उसके बाद बोन्स में आया तो बोन्स कार्सिनोमा कहते हैं, ब्लड में आया तो ब्लड कार्सिनोमा कहते हैं, यानी तो ये जहां जहां पे छाला होता वहां वहां कैंसर बोलते हैं। अब ये छाला आने का मेन रीजन क्या है? एक तो मैं बोला रूहानी,
है नहीं, इतने खतरनाक सेल्स जो आपका जीना हराम कर दे रही। अब ये रूहानी से तो होता ना, आपकी नींद खराब, आपकी इबादत खराब, आपका लाइफ स्टाइल खराब, आपका जीना मुश्किल, आपका खाना मुश्किल, आपका सोना मुश्किल, आपका बोलना मुश्किल। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये एक रूहानी हुआ। दूसरा, मैदे की गर्मी। आपके मैदे की गर्मी की वजह से छाले होते हैं। आप 1-2 दिन नींद नको करो, सफर में वगैरह छाले हो जाते हैं, आप ऑब्जर्व करो। जब तक आपकी नींद नहीं होती छाले कम हरगिज नहीं होते। आप क्या करते, वो छाले को एक लाखों कैंसर का दही आप सोच के और नींद गायब आपकी, है नहीं? तो डर को निकालो इंशाल्लाह। ये छाले को कम करने के लिए मूंग की दाल बहुत बेहतरीन है। ये मूंग की दाल कहाँ मिलती है, घर को पूछेंगे आप, ये दुकान में मिलती है नहीं? तो 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 15 पुदीने के पत्ते, 1 चुटकी सेंधा नमक। घर में नमक को बदल डालो, सेंधा नमक इस्तेमाल करो। शक्कर को बदल डालो, गुड़ इस्तेमाल करो। और तेल को बदल डालो, जैतून का तेल इस्तेमाल करो। ये 3 चीजें बदल डालो इंशाल्लाह घर में। 3 चीजें हमेशा हेल्थी लाइफ जिएंगे। आपकी मैदा कभी खराब नहीं होंगे, आपको एसिडिटी कभी नहीं होगी, आपको बीमारी हरगिज नहीं होंगी। ये हकीम डॉक्टर नहीं, आप खुद बोलना किसी का घर अगर बचाना चाह रही तो। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाया फकीर, घटमुट जाता हॉस्पिटल को। घर को मुर्दा होको आता, नहीं तो खरजदार होको खबर को चले आता। कहां से कमाया, कहां खर्च कराया करता, कमाया हॉस्पिटल में खर्च कराया करता। बोलता अल्लाह पत्ते में शिफा रखा, वहां की गया। यकीन नहीं था मुझे तेरे ऊपर, मरने के बाद मालूम हो रहा था। और एक बार बेच करता, एग्जाम खत्म होगा करता। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है नहीं? तो बली के बकरे नको बनो, बैठ के अमल कर लो। इलाज आसान किया अल्लाह। समझ रही? 1 मुट्ठी कौन सी दाल, मूंग की दाल। अभी भी थोड़े छाले हैं, ये पूरे कम हो जाना इंशाल्लाह, आपको खाना चलना आपका। 1 मुट्ठी मूंग की दाल और जो है 12 से 15 पुदीने के पत्ते, 1 चुटकी सेंधा नमक। रात को पानी में भिगने डालो, सुबह उठ के अच्छा बारीक चबा के खाना है। और शीशम के पत्तों का पानी, शीशम के पत्तों का इस्तेमाल नहाने के लिए और खाने के लिए। बेर के पत्तों का इस्तेमाल नहाने के लिए। समझ रही? शीशम के पत्तों का इस्तेमाल खाने के लिए। बेर के पत्ते 1-3 शीशम के पत्तों में मिला के खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पका के काढ़ा बना के पी सकते हैं इंशाल्लाह। ये एक सही तरीका है, ये कर लिए नमाज की पाबंदी के साथ। नमाज की पाबंदी के साथ बहाना नहीं चलता। मैं सफर में था, नहीं हुआ। मुझे मोशन आ रहा था, नहीं हुआ। नापाकी हो गई, बीमारी की हालत में है, सर नहीं झुकेंगे तो मुश्किल है। किसे मालूम, सफर में तुम्हारी मौत मुकर्रर थी होंगी। अब सफर में सजदे में थे होंगे, अल्लाह से मुलाकात कर रहे थे होंगे, मौत का फरिश्ता आ गया। नमाज के टाइम पे आपकी मौत थी होंगी। हम चाहते ना अल्लाह हम ना हक की मौत दे, ईमान की मौत दे, ईमान पे खात्मा हो, सर सजदे में हो। हमारी ख्वाहिश है ना सजदे की मौत, उम्रे में अल्लाह से मुलाकात की मौत। ऐसी मौत मांगते ना हम, है नहीं? हम गुनहगार बंदों को एक ख्वाहिश है ऐसी मौत मरना, तो हम ऐसे अमाल भी करना इंशाल्लाह। नमाज सबसे बड़ा अमल, नमाज आपको हर बुराई से बचा लेता है इंशाल्लाह। साफ हो जाते हैं इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी सख्त जरूरी है। जितना भी बिजी हो, जितना भी काम हो, इंशाल्लाह रुका दो नमाज, रुक जाओ नमाज। घर में एक रजिस्टर बनाओ। अगर कंपनी है तो आपकी कंपनी में एक रजिस्टर्ड बनाओ। नहीं कंपनी में आप खुद काम कर रही, जहां अगर नमाज की वहां पे आप छोड़ दो वो काम, दूसरे जगह निकलो। आप रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। कहां भी बैठो, आप पहाड़ पे भी बैठो, आप जो है जलपल्ली में बैठो, आप कांटेदान में बैठो, अल्लाह रिज़्क़ भी जाने वाला है, दुनिया वाले नहीं। नमाज छोड़ के आप क्या करेंगे भाई? समझ रही हैं आप मेरी बात? अल्लाह बरकत तब देगा जब आप नमाज के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह से मदद तलब करेंगे। नमाज और सबर, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशियीन। नमाज के साथ सबर के साथ काम लो। अल्लाह इन लोगों के साथ हमेशा रहता। और ये बहुत मुश्किल काम है उन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए आसान है जिनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है, अल्लाह से मुलाकात का टाइम है। तो इंशाल्लाह ये चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना, अमल करना इंशाल्लाह। अब नमाज नहीं पढ़ते, मैं पत्तेज खाता हूँ, मैं पलोतेज खाता हूँ, बोले तो अल्लाह की मर्जी, चाहे तो देता, नहीं तो नहीं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाअल्लाह अगर वो हाल में मौत होगी, बस इतना हमारे दिमाग में रहना कि अल्लाह हमसे राजी हो जाना और हम दोजख से बच जाना। ये एक हमारा मकसद और ये एक ही हमारी कामयाबी रहना कि हम दोजख से बच के अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में हम दाखिल होना, अल्लाह हमसे राजी हो जाना। बस एक ही हमारी मंजिल है, ये एक ही हमारी कामयाबी है इंशाअल्लाह। जो बाकी के अमन, जो शिफा है, इज्जत है, पैसा है, सेहत है, दौलत है, ये सब बाई वन गेट वन फ्री के जैसा ऑटोमेटिकली मिल जाता आपको इंशाल्लाह। इसे पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? अल्लाह आपको अच्छी बड़ी कार में बिठाएंगे, अच्छा सुकून से राजा के जैसा रखेंगे, रानी के जैसा रखेंगे। वो बात सेकेंडरी, पहले कामयाबी जो है ईमान, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुलाकात होंगी इंशाल्लाह 18 तारीख को जो है इंशाल्लाह कड़पा में, इंशाल्लाह विनायका फंक्शन हॉल जो है, विनायका नगर अजमत फंक्शन हॉल पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।